Assalamu alaikum. This is Engineer Murad Zahoor, and today we will discuss about supply unit for chemical reactors. This is the last experiment of our lab. Chemical reactors are the core element of chemical production facilities. In reactors, the starting materials such as reactants or react with each other, and a new substance or product is formed. The reactor must fulfill the conditions for an optimal reaction sequence. This includes above all the temperature and retention time in the reactor. Normally, we distinguish between four basic types of industrial scale chemical reactors, which are continuous stirrer tank reactor, which is also known as CSTR, or discontinuous stirrer tank reactor, stirrer tank in series, and tubular reactor. For the analysis of chemical reactions in the laboratory, two more tubular reactors are used, which are plug flow reactor and laminar flow reactor. But here in lab we will discuss only CSTR and tubular reactor. Here are some learning objectives of using a supply unit for chemical reactor. The first one is the adaptation with the design and function principle of different reactor type. Here in lab we will discuss and perform experiment on CSTR and tubular reactor. The second one is the determination of the conversion depending on a reactor type. Retention time. We can vary retention time in CSTR by varying the available level probe, or by varying the flow rate of reactants coming into the reactor. The third one is temperature. We can control the temperature by using the controller available on supply unit for chemical reactor. And the fourth one is concentration. We can vary the concentration of reactants available in the educt tank A and B. This is the control panel for supply unit for chemical reactors. It consists of temperature controller, flow rate controller for the flow of reactants into the CSTR or tubular reactor, display for the transducers. Here transducers probes are used for the determination of conductivity in the reactant tank, or in CSTR or a tubular reactor, or in the product tank. Steering machine is available in reactant tanks or CSTR. Main switch for the on and off of controller. In case of CSTR and tubular reactor, alkaline saponification reaction will take place. Soaps are sodium or potassium salts of long chain fatty acids, where triglycerides in fat or oil react with aqueous solution of KOH or NaOH. They are converted into soaps and glycerols. This is called alkaline hydrolysis of ester. Since the reaction leads to the formation of soap, it is also known as saponification process. In case of supply unit for chemical reactors, peristaltic pump is used for the pumping of reactants into the reactor, or the final product from the reactor to the product tank. Peristaltic pump is a mechanical pump in which pressure is provided by the movement of construction along a tube, similar to the biological peristalsis. Before starting the experiment, we will create two solutions in two separate tanks. A 0.02 molar solution of sodium hydroxide in tank 1, and 0.2 molar solution of ethyl acetate in tank 2. Height of the reactor can be varied by, in case of CSTR, by varying the level probe, as you guys will watch in the demonstration video. Lambda node is the initial conductivity of educt tank 1, in which 0.02 molar solution of sodium hydroxide is placed. Lambda is the conductivity of the reactant just before the reaction starts. It is impossible to calculate the conductivity of reactants just before the reaction starts, so we will divide the value of lambda node by 2. Lambda end is the conductivity of product coming out of CSTR or tubular reactor.
So by using the below mentioned formulae, we can easily calculate the values of volume of reactor, volumetric flow rate, or the final concentration of the product, and the conversion and the retention time in the reactor. Here are some experimental values. By using these values, you guys can calculate the conversion of reactants into product, retention time, and order of reaction in case of CFR and in case of tubular reactor. सो ये यूनिट है हमारे पास सप्लाई यूनिट फॉर केमिकल रिएक्टर्स। इसमें हम जो है वो टू टाइप ऑफ रिएक्टर जो है वो स्टडी करेंगे। एक टाइप है रिएक्टर की हमारे पास CSTR, और सेकेंड टाइप है हमारे पास रिएक्टर की वो है हमारे पास ट्यूबुलर रिएक्टर। और अभी जो है हमने सिस्टम के साथ जो कनेक्ट किया हुआ है वो है CSTR। रिएक्शन जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करवाना है वो है हमारे पास स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। एक टैंक हमारे पास जहाँ पे जो है वो दो रिएक्टर टैंक्स हैं। एक टैंक में जो है हमारे पास इथाइल एसीटेट होगा जो कि हमने इस टैंक के अंदर फिलअप किया हुआ है। सेकेंड टैंक के अंदर हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा जिसको हमने इस टैंक के अंदर जो है उसका सोल्यूशन बना के फिलअप किया हुआ है। रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर हम वेरी कर सकते हैं, लाइक रिएक्टर टैंक का टेम्परेचर जो है हम इजीली वेरी कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर, और साथ साथ में हमारे पास रिएक्टर टाइप हम कौन से टाइप का रिएक्टर यहाँ पे यूज़ करें। रादर के हम जो है वो CSTR यूज़ करें या तो हम जो है वो ट्यूबुलर रिएक्टर जो है वो यहाँ पे लैब में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो रिटेंशन टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होगा हमारा कन्वर्जन। लाइक इन दोनों रिएक्टेंट्स को CSTR के अंदर कितना टाइम मिलता है रिएक्ट करने के लिए, रेजिडेंस टाइम या रिटेंशन टाइम या स्टेज टाइम, तो उस पर भी जो है वो डिपेंड कर रहा होगा कन्वर्जन हमारे पास जो है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो कंट्रोलर जो है आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसका सबसे जो मेन पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रिएक्टेंट्स का, तो हमारे पास एक रेजरवायर है यहाँ पे सेम जो हमने कल स्टडी किया था हीट एक्सचेंजर के केस में। तो यहाँ भी हमारे पास जो है हॉट वाटर रेजरवायर है जहाँ पे हमने डिस्टिल्ड वाटर जो है पहले से फिलअप किया हुआ है। ये हॉट वाटर जो है हम यूज़ करेंगे इन दो रिएक्टेंट्स को हीट अप करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हमने जो है यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट कंट्रोलर से जो है वो वैल्यू सेट करनी है टेम्परेचर की। लाइक मैंने अभी जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर यहाँ पे सेट किया हुआ है। हीटर आप लोगों ने ऑन करना है और टेम्परेचर जो है आप हमने सेट कर देना है लाइक 55 डिग्री सेंटीग्रेड। +-1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ऑफसेट जो है या एरर जो है ये वो कंट्रोलर जो है हीटिंग कंट्रोलर जो है हमें देगा। ठीक है, साथ में जो है पंप का बटन है। पंप का बटन जब हम ऑन करेंगे तो इस टैंक से इस रेजरवायर से वाटर जो है वो पंप होगा कोयल्स के अंदर जो कि डिप की हुई हैं। इमर्जन कोयल जो है जो पहले से डिप है रिएक्टेंट टैंक के अंदर। लाइक इस टैंक से जो है वो वाटर यहाँ से इन होगा और कोयल से पास होने के बाद सेकेंड रिएक्टेंट टैंक में जो है उसकी कोयल से पास होने के बाद एग्जिट कर जाएगा। तो हम स्टार्टिंग में बिफोर द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं रिएक्टेंट टैंक्स का। ठीक है, साथ उसके बाद जो है हमारे पास जो मेजर पॉइंट्स हैं हमारे पास वो हैं कंडक्टिविटी प्रॉब्स। हमारे पास जो है यहाँ पे लैब में 3 कंडक्टिविटी प्रॉब्स होंगी। तो हम इन 3 कंडक्टिविटी प्रॉब्स में से 2 प्रॉब्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉब्स हमने यूज़ करनी है कंडक्टिविटी सेंस करने के लिए, और कंडक्टिविटी सेंस हमने करनी है कन्वर्जन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो बेस है हमारे पास टू कैलकुलेट द कन्वर्जन वो हम बनाएंगे कंडक्टिविटी को। लाइक बिफोर द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंडक्टिविटी जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड टैंक के अंदर वो क्या थी, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास जो है वो कन्वर्जन जो है वो
क्या हुई है उसको फाइंड करने के लिए हम जो है वो कंडक्टिविटी प्रोब यूज़ करेंगे। सेम CSVR के केस के अंदर भी और सेम कंडक्टिविटी प्रोब जो है जब हम यूज़ कर रहे होंगे ट्यूबुलर रिएक्टर, तो यहाँ पे हम जो है इसको डिप कर देंगे जब मैं इस सिस्टम को वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों को मैंने जो बताया वो हमारे पास जो है वो हॉट वाटर रेजर्वायर है, साथ में हमारे पास जो है 2 रिएक्टेंट टैंक्स हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट टैंक में जो है हमारे पास इथाइल एसीटेट है और सेकंड रिएक्टेंट टैंक जिसके अंदर हमने कंडक्टिविटी प्रोब जो है वो डिप की हुई है वो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्टेंट टैंक। ठीक है, इन दोनों में हमने रिएक्टेंट्स फिल किए होंगे और इन रिएक्टेंट्स को जो है पंप करने के लिए CSVR में हम जो है यहाँ पे पंप 2 P2 जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ पंप, जिस स्पीड से ये दो रिएक्टेंट्स जो हैं CSVR में या ट्यूबुलर रिएक्टर में पंप होंगे उसको हम वेरी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो है स्पीड ऑफ पंप वेरी करने के लिए जो है ये प्रोब जो है वो नोब जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, टाइप ऑफ पंप जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ पंप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना रिएक्टेंट्स को पंप करने के लिए CSVR में या ट्यूबुलर रिएक्टर में, वो हमारे पास है पेरिस्टॉल्टिक पंप, जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आप लोगों को लेक्चर में दे दी है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो पंप ऑन करेंगे। ठीक है, ये पंप जो है इन दो रिएक्टेंट्स को थ्रू दिस पाइप यहाँ से जो है रिएक्टेंट को जो है वो पंप करेगा इनसाइड द CSVR। तो CSVR में जो है हमारे दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो पंप होंगे बॉटम से। सो इसके बाद जो है हमें स्टिरर जो है वो ऑन करना है। स्टिरर जो है हमारे पास अवेलेबल है दोनों रिएक्टेंट टैंक्स में और CSVR में भी हमारे पास जो है वो स्टिरर अवेलेबल है। आप लोगों को नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूस स्टिरर टैंक रिएक्टर। तो स्टिरर ऑन करने के लिए हमें जो है ये बटन ऑन करना है। तो हमारे पास स्टिरर जो है वो दोनों रिएक्टेंट टैंक में और हमारे पास जो है वो CSVR में जो है वो स्टिरर जो है वो ऑन हो जाएगा। रिटेंशन टाइम वेरी करने के लिए हमने जो है वो CSVR के केस में रिटेंशन टाइम वेरी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो हम पंप की स्पीड वेरी कर दें, P2 पंप की स्पीड जो है हम वेरी कर दें, यहाँ से हम जो है सिर्फ नो मूव करते हैं और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट जो है हम वेरी कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स यहाँ से जो है पंप हो रहे हैं CSVR को, उनकी स्पीड जो है वो इन्हेंस हो जाएगी और हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो कम हो जाएगा। और सेकंड केस जो है हमारे पास कि हम यहाँ पे जो है वो मिनिमम स्पीड जो है वो सेट कर देते हैं पंप की, P2 पंप की, जो कि रिएक्टेंट यहाँ पे जो है पंप कर रहा है CSVR में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है एक लेवल प्रोब है जो हमने यहाँ पे डिप की हुई है CSVR में। मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। तो ये नोब जो है हमारे पास प्रोब जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इस प्रोब पे जो है होल हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं, जो आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसकी हाइट वेरी करने से, टैंक के अंदर इसकी हाइट जो है वो वेरी करने से हमारे पास जो है वो रिएक्टर वॉल्यूम जो है वो भी वेरी करता है और साथ में जो है वो रिटेंशन टाइम जो है वो भी वेरी करेगा। लाइक मैं इस प्रोब को जो है CSVR में जो है कुछ इस तरह से डिप करूँगा हमारे पास, तो लाइक 25% वॉल्यूम जो है CSVR में हम वो अचीव कर लेंगे और इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो रिटेंशन टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिटेंशन टाइम इजीली हम जो है प्रोब को अप एंड डाउन मूव करके वो वेरी कर सकते हैं और साथ साथ में जो है वो रिएक्टर वॉल्यूम जो है हम वो भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है हमें स्केल जो है वो अवेलेबल है, लेकिन मैं इजीली जो है प्रोब के ऊपर जो होल हैं उसको जो है इजीली स्केल के थ्रू जो है यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि कितनी हाइट पे मैंने जो है वो होल सेट किया हुआ है और कितनी हाइट जो है वो हमारे रिएक्टेंट जो हैं अटेन करेंगे इनसाइड दिस CSVR। ठीक है, अब मैंने जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो उसको सिंपली स्टार्ट करने के लिए लाइक मैंने टेम्परेचर जो है यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है 56 डिग्री सेंटीग्रेड इस हॉट वाटर रेजर्वायर का, और वो कंटिन्यूसली जो है हमारे रिएक्टेंट से जो है वो रिएक्टेंट्स में जो इमर्जन कोयल जो है हमारे पास उससे पास हो रहे हैं। तो दोनों रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट वो मेंटेन है 55 डिग्री या 54 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास। अब जो है हमने पंप ऑन करने हैं, P2 पंप हम यहाँ से ऑन करते हैं और तो एक लेवल स्पेसिफिक लेवल जो है हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। लाइक मैंने जो है यहाँ पे
5 सेंटीमीटर जो है वो लेवल जो है वो सेट कर लिया है। हाइट जो है रिएक्टर की मैंने जो है सेट कर लिया है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने पंप को यहाँ पे ऑन कर दिया है P2 पंप, जो कि पंप करेगा हमारे रिएक्टेंट्स को इनसाइड दिस CSCR। तो हमने क्या करना है, हमारा जो मेन फोकस होगा वो रीडिंग्स पे होगा कि हमने रीडिंग्स जो है वो नोट डाउन करनी है। एक तो हमारे पास कनेक्टिविटी होगी रिएक्टेंट टैंक में, जो कि होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। वो इनिशियल कंडक्टिविटी जो है सोल्यूशन की, जो हमने पहले से बना के यहाँ पे रखा हुआ है, वो हमारे पास जो है वो चेंज की रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। और जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन होने के बाद जब एक स्पेसिफिक हाइट जो है लिक्विड यहाँ पे अचीव कर लेगा, तो जो पंप है हमारे पास वो सप्लाई करेगा इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट टैंक के अंदर। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास इस टैंक के अंदर हमें मिल जाएगी। ठीक है, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी ना, तब आप लोगों ने जो है हमारे पास जो एंड लैम्डा एंड जो है हमारे पास, या कंडक्टिविटी जो है हमारे पास प्रोडक्ट की, वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 3 कंडक्टिविटी जो है आप लोगों ने मेजर करनी है। एक जो है हमारे पास वो है रिएक्टेंट टैंक की, जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड कंडक्टिविटी आप लोगों ने सेंस करनी है राइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो है वो है कंडक्टिविटी होगी हमारे पास प्रोडक्ट की। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इफेक्ट चेक करना है, इफेक्ट ऑफ रिटेंशन टाइम ऑफ रिएक्टेंट इन द CSCR और ट्यूबुलर रिएक्टर। सेकेंड हमारे पास जो है पंप की स्पीड वेरी करने से कन्वर्जन पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट, लाइक टेम्परेचर वेरी करने से, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट वेरी करने से हमारे पास जो है प्रोडक्ट की कन्वर्जन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और देन हमारे पास जो है फाइनल जो है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, लाइक कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से, जिस कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन हमने यहाँ पे बनाए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने से हमारे पास जो है वो कन्वर्जन पे जो है वो किस तरह से इफेक्ट होगा। ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। हमने जो है यहाँ पे अभी ट्यूबुलर रिएक्टर जो है कनेक्ट कर दिया है। कनेक्शन जो है वो बहुत सिंपल है, जैसे CSCR के हमारे पास सेम जो है हमारे पास कनेक्शन जो है ट्यूबुलर रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टेंट टैंक्स हैं हमारे पास, वो सेम वही टैंक्स रहेंगे। सेम हमारे पास पहले से का टैंक होगा, और सेम हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टैंक जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा हमारे पास कि जो ट्यूबुलर रिएक्टर है हमारे पास, इसको जो है इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स आएंगी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसका टेम्परेचर जो है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक हीटिंग इफेक्ट जो है हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पाइप से जो है वो फ्लो करेगा, और यहाँ से कोयल से पास होने के बाद जो है वो एग्जिट करेगा फर्स्ट टैंक से, और सेकंड टैंक में इनलेट करेगा इमर्जन कोयल में। और इसकी इमर्जन कोयल से पास होने के बाद जो वाटर जो है वो इन होगा बॉटम से, और शेल साइड पे जो आपको ग्लास का शेल नज़र आ रहा है ना, तो शेल साइड पे जो है वो हॉट वाटर जो है यहाँ पे फिलअप होगा बॉटम से, और फिल होने के बाद जो है वो एग्जिट कर जाएगा दोबारा से इस हॉट वाटर रिजर्वायर में। ठीक है, तो हम ट्यूबुलर के केस के अंदर जो है वो हॉट वाटर इंसर्ट करेंगे शेल साइड पे रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो सेम जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स में मैं पंप P2 यहाँ पे ऑन करूँगा। हीटर मैंने ऑन कर दिया हॉट वाटर रिजर्वायर के लिए, और मैंने पंप ऑन कर दिया हॉट वाटर सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पंप P2 जो है मैंने यहाँ पे ऑन करना है। पंप P2 ऑन करने के बाद जो है रिएक्टेंट्स यहाँ से जो है वो सप्लाई होंगे टू द बॉटम ऑफ दिस ट्यूबुलर रिएक्टर। ठीक है, और रिएक्टेंट्स एंटर होंगे ट्यूब के अंदर, और केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होगा इन वाइट कलर की ट्यूब के अंदर। इसका जो टोटल वॉल्यूम जो है ट्यूब जो हमारे पास वो है 250 ml, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है वो पहले से लेक्चर में बता दिया। ठीक है,
तो जैसे ही बॉटम से जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो एंटर होंगे ट्यूबुलर रिएक्टर में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो है इनसाइड द ट्यूब, जो केमिकल ट्यूबुलर रिएक्टर जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इसके पास करने के बाद जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो टॉप से जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो है वो सप्लाई होगी हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट आएंगे हमारे पास उसमें। इस केस में जो है हमने लैम्डा एंड जो है हमारे पास या कनेक्टिविटी जो है प्रोडक्ट की हमने इस पॉइंट से जो है वो सेंस करनी है, लाइक ये प्रोब जो है हमने डिप करना है इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ से हमारे पास जो है वो कनेक्टिविटी जो है प्रोडक्ट की हम ईजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है बताने वाली, वो ये है कि लाइक हमारे पास जो है एक इनिशियल कनेक्टिविटी होगी जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के टैंक की होगी, और एक हमारे पास जो है वो फाइनल कनेक्टिविटी होगी जो दोनों केसेस में CSPR के केस में और ट्यूबुलर के केस में जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट की जो है हमारे पास कनेक्टिविटी होगी, वो हम इजीली प्रोब को डिप करके जो है वो सेंस कर सकते हैं। तो जो थर्ड टाइप जो है हमारे पास कनेक्टिविटी की जो हमें सेंस करनी है वो हमारे पास है लैम्डा। लाइक ये जो है हमारे पास लैम्डा नोड है जो हम कनेक्टिविटी सेंस कर रहे हैं, इनिशियल कनेक्टिविटी सेंस कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन की जो हमने इस रिएक्शन टैंक में बनाई हुई है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास लैम्डा एंड है जो कनेक्टिविटी है हमारे पास प्रोडक्ट की। इसके अलावा जो है हमने एक और कनेक्टिविटी सेंस कर दी है, लेकिन हम वो सेंस नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, वो है हमारे पास लैम्डा। उसको सेंस वो कनेक्टिविटी हमारे पास ये है कि जब ये दो रिएक्टेंट जो हैं इस ट्यूबुलर रिएक्टर के अंदर या CSPR के अंदर जो है वो पंप किए जाएंगे और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। जस्ट बिफोर द केमिकल रिएक्शन स्टार्ट जो हमने कनेक्टिविटी सेंस कर दी है ना, वो एक्सपेरिमेंटली सेंस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है इस इनिशियल कनेक्टिविटी को जो है हमने डिवाइड करना है 2 से, लाइक सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन A और B जो है सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो सप्लाई हो रहे हैं इस केमिकल रिएक्टर के अंदर, चाहे वो ट्यूबुलर है या वो CSPR है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लैम्डा फाइंड करने के लिए हमने जस्ट लैम्डा नोट की वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। उसका हाफ जो होगा हमारे पास, क्योंकि हाफ रिएक्टेंट जो है वो A है और हाफ रिएक्टेंट B है इनसाइड दिस ट्यूबुलर रिएक्टर और CSPR रिएक्टर। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए हमने जो है इस NaOH लैम्डा नोट की जो कनेक्टिविटी होगी उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। तो वो वैल्यू जो होगी हमारे पास वो लैम्डा की वैल्यू होगी, कनेक्टिविटी की वैल्यू होगी जब दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो सप्लाई होंगे CSPR में या ट्यूबुलर रिएक्टर में और केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज जो है आप लोगों को जो है वो मैं इस लेक्चर के एंड पे या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप लोगों को सेंड कर दूँगा। आप लोगों ने फॉर्मूलाइज यूज़ करने हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा वीडियो के अंदर, और आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए करने के बाद जो है वो आप लोगों ने कन्वर्जन फाइंड करनी है। कितनी कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे हमने अभी की इन केस ऑफ CSPR और इन केस ऑफ ट्यूबुलर रिएक्टर, और इस केस में जो है हमारे पास कन्वर्जन जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो चेक करना है कि रेजिस्टेंस टाइम का जो है वो किस तरह से हुआ कन्वर्जन का।